Okay, a very good morning to everyone. Today, we are going to start the remaining part of the first chapter, which we have seen yesterday. And now I'm going to share one screen. I'm going to share one screen. The screen which I'm going to share is that first, I want to give some informations to you. The first information is that you see when you observe there, you can see that you are getting my WhatsApp list over there. Now you see we have two biology groups. There are two biology groups. I hope that you are able to hear me. And please you to use your chat box. Then I can come to know that you are seeing all these things. And yeah. Now what I want to say that there are two WhatsApp group over here. One is written as 12th B biology. Now look at over here. You can see that at the top. You can see 12th B biology. This 12th B biology is this group is exclusively for B division students. Okay, students, to please listen. This group is exclusively for B division because I am your biology teacher for this year as well as for the next year. For 11th standard as well as for 12th standard, I will be your biology teacher. So you are remaining with me for the 2 years, and so this group is exclusively for them. And all the students, as per the list what I got from college, all the students whose name, GR, roll number entered there in the Excel sheet is added over here. But you see that your mobile number may be changed or something else like that. But you please note that your changes there in the mobile number and all, you have to update always because this is permanent. Another thing is that you see that in my device, I'm recording your name, your roll number. I mean, roll number is not yet assigned. So your GR number, everything is assigned there in a proper manner. If you observe there, you can see that there already it is written FY, that is first year, B is division, and after that your GR number is there, and after that your name is there. So according that way, I'm recording your details in my device. So the B division is like that only. So remember that this group is exclusively for B division. And why this group is formed now? Because we got this list day before yesterday only. But I was requesting college for the list of biology students for the last 1 month, but I did not get it. And when I repeatedly asked, no, they sent one list that was a combined list. But with the combined list, I made the group because we cannot wait for such a long time to take the class or start the class because already physics, chemistry, mathematics, and all started more than 1 month back. And we biology people are we see we are lagging over there in work. So I requested them, but they gave the list in such a manner only. But still, whatever I got with that, I made one group that is FIJC biology group. So in FIJC biology group, all the students will be there, B division there, A division there, C division there. But uh, B division students will remain there in the B group, and A and C students, if you want, I'm not compelling A and C students to be there in the group. I am not compelling you to attend my lectures. You can wait for again few more days to other teachers to start the class, or if you want, if you are willing, you can attend my lecture. There is no issue at all. Okay. The moment all the students leave this common group, I will remove that group. Till then, the group will remain over there like this. Okay. Whoever wants to join my lectures, my classroom, and everything from other divisions, they are totally free. So they can attend the lecture anytime. They can come to me anytime. There is no issue at all. That is up to you to decide. But all the B division students be in touch with me only because I am your biology teacher for this year as well as next year. Okay.
I hope that you got an idea about this group. So in B division, all the students of B division must remain there. But remember one more thing I want to say, the Excel sheet. In the Excel sheet, some 92 students named there. Out from this Excel sheet or from B division, which is already allotted from there, some students may go out for bifocal or IT. So the total strength of this B division is 80. So now more than 80 students are there. So I know that some students will leave this group B division, but once they left the group, I mean, once the allotment has been done for them, and after that the roll number will be assigned, and then I will keep the roll number also with me as a record. Okay, so this is the current situation, because I know that you are already fed up with so many groups. Okay, I know that you are already fed up, because even if you see my device also, you just see that we are already fed up with all these things, because so many groups. Now you see one round, second round, third round, fourth round, uh, it's too much, what I can say, disturbing factor. I know that, but remember, FIJC B division, there is only one biology group, and a common group can be removed later once the lecture started everywhere. Okay, so this is about this particular information I wanted to pass on to you. uh, I think this is clear to you. This is clear, friends? Just tell me, is it clear to you? If your name is not there, you don't worry, man. You are there in A division or C division. I have given you a list there in the classroom that is only for B division. The A division and C division list is not yet published, not yet released, and because of my conversion, I got the list. So if your name is not there, you don't worry at all. You don't worry at all. Your name will be there in either A division or C division. That is why. Okay. Now I'm going to share another screen. That is, so Facebook part is, I'm sorry, WhatsApp part is over. Now I come to your textbook. Now I'm sharing one textbook, your textbook over here. I hope that you see over here. You can see the textbook clearly, friends. Please use the chat box, so it will be very convenient. I can understand that you are getting everything clear. Okay, now this is your textbook. Yesterday, I have taken from here this part. That means this part we have seen yesterday. Okay. Now look at here. Yes, nothing is mentioned over here as a heading. I have a request to the students that when the lecture is started, I cannot attend your lecture. I mean, I can attend your call. Some students, I think maybe they may be finding some difficulty to enter. 1 second, let me check with WhatsApp. What is wrong? Anything wrong? Okay. I think some students are facing some difficulty, but the problem is that I'm unable to attend the call, because my both the devices, they're in this platform now, because my mobile is also on with this information. That's why. Okay. Now you see, when you observe this textbook, last time what I told you the basic principles of life. I showed 5 important headings over there. So that time I got a chat there that it is not there in the textbook. I have a request to you that
whatever is there in the textbook, if you are keep on talking like that, that is just like spoon feeding. So our mode of teacher, as a teacher, when I teach the topic, not based on these things, this is the topic which is given in the textbook. I mean, this is the content given in the textbook. Related to this, everything I have to talk to you. Okay. So the last class, we have seen all the 5 metabolism we have seen. Then this is regarding the birth. This is regarding the growth. This is regarding the reproduction. This is regarding the death. And this is regarding the consciousness. So all these 5 points I explained to you. In today's session, what I'm going to take, the remaining part, according to the current year's instruction, for the examination purpose, no need to study from 1.2 to till the last 1.2 to 1.7. No need to study for examination purpose. I hope that you are understanding what I said, friends. If you are understanding, you please write a big Y there in the chat box. For examination purpose, no need to study the things from 1.2 to 1.7. But for knowledge purpose, you should study it. You should study means we are not going to study this part there in detail. In one sentence, I will tell you what is this 1.2 to 1.7. That is just for your knowledge purpose. मैं आपको ये बताने का कारण यही है, बाद में आप नहीं बोलने का अरे स्टडी नहीं करने का, बोर्ड वाला बोला है ये पढ़ने का नहीं है. ऐसा नहीं है. आप सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए ये आएगा नहीं. बस इतना ही है. ओके. You want to study this, you want to study only for examination, or you want to study for knowledge purpose? What is your answer, friends? You want to study for knowledge, or you want to study for examination? Knowledge. Very good. Okay. Then in today's session, we will see the remaining part of this topic for your knowledge purpose. Okay. You got it clear now? Now I'm going to share the remaining part for presenting. Okay. One second. Let me come to that point, because many things are there. So I have to come that. Okay, I'm going to share now. Now how to share that. Where is that? Okay, I hope that now it is coming on your screen. Okay, fine. Now today what we are going to talk about. Last section we have seen that there are different basic principles there in life. How many basic principles in life we have seen in the last session? The last session, how many you have seen? Yeah, five there. Only 5. Are you sure?
Only 5 principles you have seen? Yes, but I told you 6. One add करके बताया था, notes में भी है. Okay, I will repeat that. What are they? What are the basic principles of life we have seen? The characteristics of living organisms we have seen. Number one. Can you tell me number one? You are starting with the death. Okay. Number one, metabolism. Okay. Number two, yeah, you are saying growth. Now I am following your textbook. That is why I started with the metabolism. So number one is that metabolism. Number two, growth and development. I'm not asking what it is now. Number three, that is according to your textbook, aging. Number four, reproduction. Number five, death. And number six, response. Yeah, consciousness. Okay, these are the 6 important points we have seen yesterday. But after that, we have to see one important thing. In this universe, there are a lot of plants and animals. So many plants and animals there in this universe. And if you are going to study every plant and animal in the world or in the universe, one after the other, your lifetime is not sufficient to understand about those plants and animals. So because of that, what we have to do? We have to make some arrangement of plants and animals for easy study based on certain similarities and differences. And this part will come the classification part that I don't want to tell you right now. When we start second chapter, there we will see about that. But what I want to say here, so if you want to study the diverse living organisms over here, you can see that there are some important criteria or important, what you can say, some methods over there to study about these plants and animals. If you want to study about them, you can go through certain aids, certain taxonomical aids to study about those plants and animals. Now we cannot talk about birds flu. It's a viral disease. And that is spread among the birds. That is why. Okay. So you can see that diverse plants, diversity you can see among the plants and animals. There are so many plants and animals. I don't want to go very deep into that. I just want to say, to study about these various types of plants and animals, or to make them understand, to understand about them, you have certain taxonomical aids. And these taxonomical aids, I will tell you today in very short form, since it is only for knowledge purpose, not for examination purpose. Okay. Now we are going to talk about the taxonomical aids. Okay. What are the taxonomical aids we have? Aids means the methodology or the materials which are available for us to understand about these diverse plants and animals. What are the various types of taxonomical aids? Just look at them quickly. Just look at them. आपका स्क्रीन पे आ जाता है, वन आफ्टर द अदर सब कुछ आ जाता है. ओके, आपका टेक्स्ट बुक में सिर्फ 5 दिया है, इसमें सारे बोध आया है. ओके, so what are the taxonomical aids? What taxonomical aids you have to study about the plants and animals? Number one, herbarium. क्या है herbarium? मैं next slide में आपको बताता हूँ. Herbarium. Number two, botanical gardens. Number three, zoological park. Number four, museum. Number five, key. Number six, flora. Number seven, manuals. Number 8, monograms. And number 9, catalogs. Out of these 9 various taxonomical aids, आपका टेक्स्ट बुक में दिया है सिर्फ 5. herbarium, botanical gardens, zoological park,
मैं ये सब आपको कल नोट्स में डाला है, आपको समरी के लिए, आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में आपको क्लासरूम में डाल दिया. You can get it from there. If you want to write, you can write. I won't say don't write. You can write. Okay? Because when you write the points, I always advise students to write the points. You write the points, but not make it as a note. Okay? Notebook में आपका जो notes लिख रहे हैं ना, जैसा नहीं करने का. You just write the points because you are attending a lecture. You are writing lecture notes. Okay? मैं आपको बोल रहे हैं ये 9 डिफरेंट एड्स आर देयर, टैक्सोनॉमिकल एड्स आर देयर. आपका टेक्स्ट बुक में सिर्फ 5 ही दिया है, बाकी 4 ओलो ऐसा ही ओमिट कर दिया. लेकिन एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो आपको ये पूरा 9 वहां मिल जाएगा. ओके, सो बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, these are the 5 points you have to study in detail आपका टेक्स्ट बुक के अनुसार. Okay, now we go to the first one now. The first one is that, which is the first one, just look at them. The first one is coming on your screen now. Okay, that is called a herbarium. That is what is called herbarium. Now, what is this herbarium? Have you heard about herbarium any time before? आप कभी भी herbarium के बारे में सुना है? Okay, आप सुना तो बोल दीजिए ना, क्या है herbarium? टेक्स्ट बुक कॉपी मत करो, अभी तक नहीं सुना. Okay, now just look at them. What is herbarium? आप देखिए herbarium क्या है. आप देखो इधर, आपको ऐसा देखने को मिलेगा. एक शीट पेपर देखिए, एक थिक पेपर है. ये थिक पेपर में देखिए एक प्लांट का एक ट्विग बोलेगा तो शूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सब कलेक्टिवली बोलता है एक पर्टिकुलर शूट. सो ये आप क्या किया है, कलेक्ट करके उसको ड्राई कर दिया. ये प्लांट का ये जो टुकड़ा है, मतलब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब को क्या किया है, वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट एंड देन वी ड्राइड इट. वो न्यूज़पेपर का बीच में रखे हम लोग इसको ड्राई किया. सो उसके बाद इसको प्रेस कर दिया और देन कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद ये पेपर के ऊपर चिपकाया है. एक पेपर का पर्टिकुलर साइज है, वो साइज के अनुसार कट करके वो पेपर का ऊपर वी हैव क्या स्टिक करके रखा है ये जो प्लांट पार्ट को. और उसका नीचे हम ये प्लांट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है. सो ये जो स्ट्रक्चर को बोलता है हर्बेरियम. सो इधर लिखो, आप देख लीजिए, व्हाट इज दिस हर्बेरियम? इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस. प्लांट स्पेसिमेन का एक स्टोर हाउस है, लेकिन प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस लाइव कंडीशन में रखता नहीं है. हम कौन सा कंडीशन में रखता है? इट इज अ ड्राइड कंडीशन. आप देख लीजिए, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट and arranged according to universally accepted classification. मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक फॉर्मेट, एक प्रोसीजर है. वो प्रोसीजर अनुसार ऐसा बना के देखिए, ऐसा शेल्फ में स्टोर करके रखा है. अभी आप रिसर्च सेंटर में वगैरह जाएगा तो वहां हम आपको ये सब कुछ देखने का मिलेगा. अपना कॉलेज में मेरा कबोर्ड में भी है. ओके, मेरा हमारा पहले का मैंने स्टोर करके रखा है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेर्बेरियम. यू गॉट इट नाउ क्लियरली? नाउ इसका आगे का पॉइंट अभी स्क्रीन में आ जाता है, देख लीजिए. हेर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन. अभी मैंने बोला इधर कुछ इंफॉर्मेशन आएंगे. ये इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखेंगे, आपने कभी कलेक्ट किया, ये कहां से कलेक्ट किया. सपोज आप सोचो, आप कुछ जगह पे पिकनिक गया. सोचो आप जम्मू में गया है, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में गया, साउथ इंडिया में गया, या नॉर्थ ईस्ट में गया. आप उधर जाते टाइम ना, यू गॉट सम रेयर प्लांट, यू रेयर प्लांट मिल गया, वहां से कलेक्ट कर दिया, ऐसा एक हर्बेरियम बना दिया. ओके, बट व्हेन यू कलेक्ट, आप इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालकर, वही इधर ही करना है, दूसरा उधर डालने को नहीं होगा. दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर दैट. सो आपको इधर डेट डालना, प्लेस ऑफ कलेक्शन डालना, वो लैंग्वेज इंग्लिश कॉमन, लेकिन लोकल भी यूज कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में करना, लोकल नेम आपको लिखना पड़ेगा. बोटानिक, ये प्लांट का साइंटिफिक नेम, दैट इज कॉल्ड बोटानिकल नेम. बोटानिकल नेम बोले तो हर प्लांट्स और एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम है. ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको कुछ आइडिया है? ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम, you have any idea? Human beings scientific name, are you able to hear me?
Yeah, very good. Homo sapiens. Human beings scientific name है Homo sapiens. So जैसा हर प्लांट्स को, एनिमल्स को ऐसा नेम है, अभी ये प्लांट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, that you have to write over here. Or similarly, the family plant is having a family also. मतलब हमको एक फैमिली नेम जैसा प्लांट्स को भी फैमिली का फैमिली नेम है. अभी चाइना रोज निकालेगा तो मालवेसिए, या एक बनाना लेगा तो म्यूसेसिए, और राइस लेगा तो पोएसिए. लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, द आई मीन फैमिली नेम द प्लांट्स आर हैविंग. सो यू हैव टू राइट दैट फैमिली नेम. देन किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर का नाम लिखना है. ओके, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम नहीं है, किसने ये प्लान किसने कलेक्ट किया है उसका नाम इधर लिखना है. ये सब इंफॉर्मेशन लिख के आपको जो मिलता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड herbarium. You understood herbarium now? Now just look at some more pictures over here. Just see there, some informations are there on the screen now. Okay, now you see another one. See इधर देखिए पूरा इंफॉर्मेशन इधर राइट साइड में डाउन कॉर्नर पे लिखा है. All these informations are there. Okay, so this is what is called a herbarium. Herbarium is clear? Herbarium क्या है समझ में आया ना? Even you can also do at home. Okay, now देखिए कैसे ड्राई करके प्रेस करके पूरा बराबर करके रख दिया है. ये यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम. कुछ फंगल अटैक नहीं होता है, कुछ इंसेक्ट्स उसको खाता नहीं है, तो यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम. इवन मैंने जो बनाया है 1992 में, 1991 92 में जो बनाया है केरला में, ट्रिवांड्रम करके एक मींस दैट इज द कैपिटल ऑफ केरला. देयर इज वन रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट. वहां मेरा प्रिजर्व करके रखा है. सो लो मतलब कितना साल हो गया, 1991 92 से लेके अभी 2021 हो रहे. कितना साल हो गया आप काउंट करके देखो. So you can keep it for such a long time if it is preserved in a proper manner. In a proper manner, if it is preserved, you can keep it. I mean, all formalities you have done, then you can keep it for a long time. Okay. Now we come to the second taxonomical aid. What is that? Botanical gardens. Botanical gardens के बारे में आपको क्या मालूम है? आप botanical garden visit करते हैं क्या कभी भी कभी? Now you see very beautiful garden you are coming in front of you. You are visiting such place. Yes, you like to go there. Okay, what is this botanical garden? Look at them. Specialized garden. Specialized garden having collection of living plants. Collection of living plants with reference and identification. मतलब अब वहां आप जाएगा ना, एक बोटानिकल गार्डन में आप जाएगा तो उधर कितना भी प्लांट्स है, सभी प्लांट्स का नेम, सब इंफॉर्मेशन वहां लिखा हुआ है. संजय गांधी नेशनल पार्क इज एक्चुअली नॉट अ बोटानिकल गार्डन, दैट इज अ बायोलॉजिकल गार्डन. ओके, बायोलॉजी मतलब उसमें प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है. ओके, वो है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क वी कैन से. संजय गांधी नेशनल पार्क इज ए बायोडाइवर्सिटी पार्क. बायोडाइवर्सिटी पार्क, उधर प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, और सभी प्लांट्स का ऊपर लिख के रखा नहीं ये पर्टिकुलर प्लांट है करके. दैट इज नॉट ए botanical garden. Botanical garden is a place where we can say collective, means a collection of living plants. It is a collection of living plants. आपका संजय गांधी नेशनल पार्क बोलेगा तो दैट इज अ नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है. इसलिए मैं आपको बताया है दैट इज नॉट ए बोटानिकल गार्डन. संजय गांधी नेशनल पार्क इज ए बायोडाइवर्सिटी पार्क है. ये आपका बुक में भी है. क्या है बायोडाइवर्सिटी, आपको उसमें से समझ में आएगा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क. मैं इधर नहीं बोल रहे. ओके, नाउ लेकिन बोटानिकल गार्डन बोलेगा तो उधर कलेक्शन है, एक बनाया हुआ गार्डन है, बनाया हुआ गार्डन है. सो इन दैट गार्डन यू कैन सी दैट वो प्लांट, सभी प्लांट्स का नेम, उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या वैल्यू है, उसका फैमिली नेम, सभी डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन सब कुछ हो सकता है. ओके, so wherever the botanical gardens are there, these botanical gardens we can say that is man made. Okay, अभी इधर देख लीजिए, this is not a natural forest, ये तो man made है. Okay, and each plant is labeled with its botanical name and a family in case of botanical garden. अभी मैं आपको सब examples देता हूँ, important botanical gardens का सब examples देता हूँ. ये भी आपको ध्यान में रखना है. Okay,
some botanical gardens, famous botanical gardens. पहला वाला आप देख लीजिए, Royal Botanical Garden, England. Okay, Royal Botanical Garden at Kew, England. This is one example. अभी आप बोलेगा सर आप क्यों इंग्लैंड में चले गए, इंडिया में कोई गार्डन नहीं है क्या? देख लीजिए, इंडिया का गार्डन भी आ गया है. ओके, व्हाट इज दैन इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में, वेस्ट बंगाल, इंडिया का है. ओके, नंबर 2. तीसरा आपको दिखाने को जा रहे हैं, वो भी इंडिया का है. ओके, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ. सो ये सब बोटानिकल गार्डन, इट इज नॉट ए नेचुरल फॉरेस्ट. आपको अभी समझ में आया है क्या संजय गांधी नेशनल पार्क और ये बोटानिकल गार्डन का डिफरेंस? ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? Yes, good. Okay, now I go to the next slide, next key. So next slide देख लीजिए. अभी हम जाते हैं तीसरा की में. तीसरा की है बायोलॉजिकल म्यूजियम. अभी ये बायोलॉजिकल म्यूजियम में हम लोग जाने को पहले, ओके, आई वांट टू टेल यू द थर्ड वन. उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं. ओके, आप वेट कर दीजिए, मैं आपको एक स्पेशल काम देता हूं. आपको स्क्रीन में भी आ जाएगा. आपको क्या करना है मैं उधर बताता हूं. ओके, नाउ यू सी आई एम लॉन्चिंग वन पोल, यू हैव टू सेलेक्ट वन आंसर. आपका स्क्रीन में आया है क्या, देख लीजिए. ओके, नाउ योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन यू सी देयर इज वन क्वेश्चन, प्लीज आंसर. ऊपर टाइम देखिए, 1 मिनट का अंदर आपको पूरा सभी लोगों को पूरा करना है. क्वेश्चन क्या है? लाइफ इज ए यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reactions. Identify the character which is not a true character. Which is not a true character. चालीस सेकंड्स हो गया. अभी सिर्फ 5 सेकंड्स. 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर. अभी आपका स्क्रीन में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. देखिए आपका रिजल्ट देखिए स्क्रीन पे. नाउ यू सी क्वेश्चन क्या था? लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reactions. Identify the character which is not a true character, which is not true. You see here, अभी कितना लोग इसमें रिस्पॉन्ड किया है और काउंट करके देखा तो ये मालूम पड़ेगा. अभी हमारा साथ 67 स्टूडेंट्स है, लेकिन सभी लोग आंसर नहीं किया. ओके, फिर भी मैं बोलता हूँ इसमें मेजॉरिटी किया है इटर्नल. Which is the correct answer? Use the chat box. आपका स्क्रीन में आया था ना, सभी लोगों का स्क्रीन में आया था ना फ्रेंड्स? कुछ लोग बोला वो नहीं देखा है, नहीं मिला है. सबका स्क्रीन में डाला था, आया था. ओके, तो आपका डिवाइस का कुछ इश्यू होगा. ओके, नाउ व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर? अभी देखिए 5 पॉइंट्स दिया है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन, इटर्नल एंड रिप्रोडक्शन. यस. ओके, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर इटर्नल. Now you see what are the characteristics of life. Yesterday मैंने आपको बताया था, growth and development. Every living organism is a growing one. You are growing. The growth and development takes place in you because you are a living one. Okay. आप एक मोबाइल लेके बैठा है, आपका मोबाइल ग्रो नहीं करेगा. 1 साल 2 साल 3 साल हो गया तो भी आपका मोबाइल as it is will remain. But at the same time you will grow. That means you are having life. Second, responsiveness. Responsiveness क्या है? When you get an external stimuli or external stimulus, you respond to that. The moment your response goes, we can say you are somewhat dead. Okay, the death occurs because all the metabolism stopped, no response. So then we say they're in a dead stage. Okay, so responsiveness is a character of life. Number 3, adaptation. Yesterday मैंने बोला
ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अनुसार हम चेंज होता है. यू सी द क्लाइमेट चेंज हो गया, कल एकदम हॉट हो गया, बराबर. आपने चेंज किया, आपने कंबल पूरा निकाल दिया, कंबल यूज किया, यूज नहीं कर रहे. अगर टेम्परेचर डाउन हो गया, you will use कंबल, है ना. दैट मीन्स you are changing with your changing environment. अभी आपका ऑनलाइन टीचिंग, अब देखिए ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, ऑफलाइन टीचिंग क्लासरूम में बैठ के आपका टीचर को टीस करके, तकलीफ दे के, आवाज करके बैठने का क्लास में. अभी आप कैसे बैठा है, आप कैसे बैठा है ना. एक सभी फ्रेंड्स को देख के, एक फ्रेंड से उनको टोन करके, इनको टोन करके, टीचर को डिस्टर्ब करके, सो ऐसा उधर आगे पीछे उधर इधर देखे देखे एक क्लासरूम में बैठने वाला आप लोग अभी देखिए एक डिवाइस लेके ऐसा बैठा है. सो ये सिचुएशन चेंज हो गया एंड यू आर एडजस्टिंग विद द एनवायरनमेंट, यू आर एडजस्टिंग विद दिस इज अडेप्टेशन. अभी लास्ट में देखिए रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लाइंग, दैट इज नेचुरल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीप्लाइंग. इटर्नल क्या है, हमेशा के लिए, nothing related like that, whether it is living or non-living, either eternal or for a short period of time. So the correct answer over here is that eternal. This is not a true point. Baki all the points are supporting the life, as the characteristics of life. I hope that you understood this point. Okay. Now I will give you one more question, क्योंकि ये कंटिन्यूस बात करने से चाहिए. कंटिन्यूस वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू देयर ऑन योर स्क्रीन, जस्ट लुक एट देयर, देख लीजिए. अभी ध्यान से देखो, बाद में नहीं देखा मिला नहीं करके मत बोलो. टाइम जा रहे हैं, मैं रीड करके बोलता हूं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इज शोइंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इंडिकेट्स दैट इट हैज लाइफ. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर व्हिच इज नॉट लिस्टेड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. गुड. एवरीबॉडी डू इट फास्ट, क्विकली यू कैन डू इट. ओनली वन आंसर यू चूज, एक ही आंसर चूज करना. ओके, 8 seconds बाकी. 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर. ओके, result देखिए on the screen. Now on your screen result is there. Now question, what is that? What is the question? A living organism is having life because it shows certain characters. All the characters are given over here, but one character is not a living character. हमने पहले जो बात की जैसा ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का कैरेक्टर नहीं है एक कैरेक्टर. which is that character? Look at there, self replicating. All the living organisms are replicating, या multiplying, या reproducing. Yes or no? Yes or no? Come on quickly. All the living organisms are self replicating, multiplying. Very good. Then all the living organisms are self regulation. Self regulation, आपको you can control yourself. Okay, can you control yourself? Yes, all the living organisms. Okay, then all the metabolic activities are controlled over there. That is why in a proper manner the growth is taking place. So self regulation है. Irritability, आप जाके किसी को टीज करके देखो तभी मालूम पड़ेगा इरिटेबिलिटी है क्या. रास्ते में जाते टाइम एक कुत्ता को देखा, कुत्ता को पैर से एक क्या बोलता है किक करना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कुत्ता कैसे बिहेव करेगा. सो सभी ऑर्गेनिज्म कैसा है, दे आर हैविंग द टेंडेंसी ऑफ इरिटेबिलिटी. ओके, सो आप इरिटेट करेगा ना, रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी. डेथ, जिंदा है तो एक दिन मर जाएंगे, तो डेथ भी है. लेकिन नॉन इवॉल्विंग, ये इवॉल्विंग क्या है, एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. सभी लिविंग, और अभी आप लोग बोल रहे हैं, नहीं तो कॉमनली ऐसा बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एप्स. मंकी से इवॉल्व किया करके बोलता है साइंस, ऐसा बोलता है. इसका मतलब ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन कॉमन है. लेकिन इधर क्या लिखा है, नॉन इवॉल्विंग लिखा है. नॉन इवॉल्विंग मीन्स देयर इज नो एवोल्यूशन, नथिंग इज देयर, देयर इज नो चेंज.
So correct answer over here is that non-evolving. So life है तो living one है तो self replicated होता है, self regulate होता है, irritability होता है, death होता है, लेकिन non evolving नहीं है. They are evolving. They are evolving. They are not non evolving. They are evolving. Okay. So this is about the point. 2 points मैं बहुत बात करके अभी टॉपिक में चले जाता हूँ. Okay. बाकी हम लोग बाद में देखेंगे. Now the third point, biological museum. ये बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है? आपने कभी म्यूजियम विजिट किया है? एनी टाइम यू हैव विजिटेड म्यूजियम? मुंबई में एनी म्यूजियम है? एनी म्यूजियम देयर इन मुंबई? वेयर? अच्छा, यू आर दिल्ली. ओके, मुंबई का बोलिए ना, अपना इधर का बोलिए. अपना इधर म्यूजियम है. आप नेहरू साइंस सेंटर, नेहरू साइंस सेंटर, ओके, उधर भी है, चर्चगेट में भी है. वेरी गुड. सो व्हाट इज अ म्यूजियम? जस्ट लुक एट देयर. इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा है स्टडी पर्पस. Okay, for the purpose of study and reference, when you preserve plants and animals, and when you get such a collection, that is called a museum. अभी आपका नेहरू साइंस सेंटर में है, इवन चर्चगेट में है. सो ये जो म्यूजियम में जाएगा तो you can get plants or animals like this, but these are not living one. ये living one नहीं है, ये preserved किया गया है. Okay, so this is what is called a museum. Okay. Now look at their next point about the museum itself. A museum contains क्या-क्या museum में है? What all things are there in a normal museum? अभी आप देखिए, आप कोई कॉलेज में जाके देखिए, इवन मैं अपना कॉलेज का लेबोरेटरी में जाके देखिए, या एक बड़ा डिग्री कॉलेज में, बड़ा वाला कॉलेज में जाके देखिए, उधर का बॉटनी या जूलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाके देखेंगे ना, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ शेल्फ. यू कैन सी देयर. ये शेल्फ में देखिए, ऐसा वाला बोतल का अंदर स्नेक होगा, कुछ अदर एनिमल्स होगा, फिश होगा, इवन प्लांट्स का उधर जाएगा तो बॉटनी का उधर जाएगा तो प्लांट्स का होगा. हेर्बेरियम देख रहे इधर. सो ऐसा वाला अलग अलग मटेरियल्स प्रिजर्व करके रखा है. ओके. सो ये म्यूजियम में क्या क्या है? नंबर 1, स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में ये ऐसा एक कंटेनर का अंदर या जार का अंदर ऐसा प्रिजर्व करके रखा है. फॉर्मालिन करके एक केमिकल यूज कर रहे हैं. फॉर्मालिन करके इवन आपका अपना डेड बॉडी भी वो फॉर्मालिन में रख सकता है. ओके, लॉन्ग टाइम यू कैन प्रिजर्व ओवर देयर. सो एक म्यूजियम में फॉर्मालिन जैसा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर स्पेसिमेन को स्टोर करके रखता है, कंटेनर का अंदर और जार का अंदर. एक पॉइंट. नंबर 2, ड्राइड स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी ऐसा नहीं है सभी स्पेसिमेन जार का अंदर नहीं है, सभी स्पेसिमेन लिक्विड का अंदर नहीं है. आई मीन फॉर्मालिन जैसा प्रिजर्वेटिव केमिकल का अंदर में भी नहीं है. सो वहां क्या है? यू कैन सी दैट ये ड्राइड स्पेसिमेन और प्लांट्स भी उसमें हो सब. देखिए, ये ड्राइड स्पेसिमेंट्स है. ओके, प्लांट्स और एनिमल्स ड्राइड स्पेसिमेन आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा. और इंसेक्ट्स, अभी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज. अभी देखिए, ये जो गोरेगांव में एक छोटा म्यूजियम है उधर, और संजय गांधी नेशनल पार्क का उधर, मतलब फिल्म सिटी का पीछे, क्या बोलते हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का. सो उधर इफ यू गो यू कैन सी द बटरफ्लाइज लाइक दिस. ये बटरफ्लाई को कैसे प्रिजर्व करके रखा है? इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड बॉक्स है. देखिए इधर बॉक्स है. सो ये बॉक्स का अंदर इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा है बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. सो ऐसा वाला म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा. ओके. और म्यूजियम का अंदर बड़ा वाला एनिमल्स को भी आपको मिलेगा, स्टफ करके रखा है. अभी देखिए, बर्ड्स और मैमल्स. देखिए अभी इधर नेहरू साइंस सेंटर में या इवन आप चर्चगेट में जाके देखिए, ऐसा ओरिजिनल बर्ड्स का जैसा, ओरिजिनल एनिमल का जैसा दिखेंगे, लेकिन उसको कैसे रखा है? उधर स्टफ करके रखा है. ओके. सो स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. ओके. और लास्ट में ऐसा वाला म्यूजियम में ये एनिमल्स का स्केलेटन देखने को मिलेगा. ये ह्यूमन बीइंग्स का स्केलेटन है, ये अदर एनिमल्स का, वेल का जैसा, मतलब ये जो एनिमल्स का स्केलेटन, बड़ा एनिमल्स का स्केलेटन भी
आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अब देखिए एक म्यूजियम में क्या क्या है, मैं आपको इधर बताया, डिटेल में स्टडी नहीं चाहिए इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, म्यूजियम हो गया। नाउ वी कम टू द फोर्थ वन, जूलॉजिकल पार्क। बॉम्बे में एक जूलॉजिकल पार्क है। कौन सा पार्क है, जल्दी बोलो, सब बात इजी हो जाएगा। बॉम्बे में एक जूलॉजिकल पार्क है। वेयर इज दैट पार्क, विच प्लेस इट इज? रानीबाग। ओके, बाइकुला में एक पार्क है। सो ये पार्क में क्या रखा है, ये पार्क में लिविंग एनिमल्स को क्या बोलता है, सो दैट इज अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, लाइव वाइल्ड एनिमल्स को ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ऐसा ह्यूमन केयर में अरेंज मींस caring over there. So that is what is called a zoological park, or simply we call it zoo. Okay, where live wild animals are kept in protected environment under human care. Okay, और ये इनको क्यों ऐसा, ये जो वाइल्ड केयर आई मीन ह्यूमन केयर में रखा है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है, इट हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। इवन एनिमल्स को आप देखा नहीं तो आपको फॉरेस्ट में जाके देखने को नहीं मिलेगा, आप ये जू में जाएगा तो आपको ऐसा वाला एनिमल्स को देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। ओके, नाउ नाउ यू कैन सी दैट की आपका टेक्स्ट बुक में ये लास्ट है, मैं भी ये बात करके मैं बंद करता हूँ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट की। व्हाट इज की? वेरी सिंपल, आपका जो चाबी नहीं है, चाबी के बारे में, चाबी के जैसे एक कहानी है। अब देखिए कुछ एनिमल्स आपने देखा, ये एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिमिलैरिटी डिफरेंस देके एक मेथड है। Okay, this is an analytical method of identification of organisms based on similarities and differences. So animals को recognize करने के लिए, identify करने के लिए एक idea. Okay, how will you do it? Just look at there. अब देखिए, it is based on the contrasting characters generally in a pair. इसका मतलब, अभी देखिए आपने एक एनिमल को देखा, ये एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है। यू डोंट नो विच इज दैट एनिमल, यू वांट टू आइडेंटिफाई द एनिमल। सो एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक कपलेट देखना पड़ेगा। कपलेट मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। अभी देखिए ये एनिमल, ये सैलामेंडर है, ये लिजार्ड है। हाउ इट लुक्स लाइक, दोनों लुकिंग सेम, बट इज इट ए लिजार्ड? नो। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? उनका स्किन देखना है। ये एनिमल का स्किन, अभी ड्राई स्किन, एनिमल का स्किन, ये एनिमल का स्किन ड्राई है क्या, और ड्राई और नॉट। अगर स्किन ड्राई है देन हम आगे जाएंगे, अगर ड्राई नहीं है तो we will recognize that this animal is salamander because lizard is dry, is having dry skin. Lizard is having dry skin, so हम क्या करेंगे, अभी ये दो एनिमल को देखा तो देखेगा ये whether it is dry or not. ड्राई है तो समथिंग एल्स, और ड्राई नहीं है देन इट इज सैलामेंडर। ओके, अभी इसका स्किन अगर समझो ड्राई है तो फिर आगे देखेगा इसको हेयर है क्या, इसको हेयर है क्या। अगर हेयर नहीं है पक्का ये लिजार्ड है, अगर हेयर है तो समथिंग एल्स, यस हो गया तो समथिंग एल्स। सो हेयर है, देन देखेंगे हेयर है तो उनका तंब कैसा, तंब बोले तो ये तंब कैसा है, ओपोसिबल है क्या। ओपोसिबल नहीं है देन टाइगर है, ओपोसिबल नहीं है तो डू समथिंग एल्स। ओपोसिबल नहीं तो समथिंग एल्स। अगर आप ऐसा देखा तो फिर देखेगा बाइपेडल है क्या, बाइपेडल मींस वॉकिंग ऑन टू लेग्स। सो बाइपेडल है, नहीं बाइपेडल नहीं तो फिर गोरिल्ला है, और बाइपेडल है देन नो डाउट ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनका उनका बॉडी में हेयर है, उनका बॉडी में स्किन ड्राई है, उनका बॉडी में हेयर है, उनका बॉडी में ओपोसिबल थम्स है, और बाइपेडल है, वॉकिंग एनिमल्स। सो ऐसा पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देके ये एनिमल को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेसिंग को हम बोलता है की। सो दिस इज कॉल्ड एज की। लेकिन इसका अंदर दो टेक्निकल टर्म है, एक कपलेट। कपलेट क्या है, एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को बोलता है कपलेट। अभी ये एक कपलेट है, ये एक कपलेट है, समझा ये बात? आर यू फॉलोइंग मी फ्रेंड्स? एंड और एक टेक्निकल टर्म आपको इसमें है, each couplet has two opposite options. अब देखिए दिस इज वन कपलेट, अभी ड्राई स्किन,
ड्राई स्किन है तो उसका दो ऑप्शन है, either no or yes. Okay? So two opposite option of these, only one is relevant, the other is rejected. Okay, then and each statement in the key is called a lead. अभी ये जो कैरेक्टर को दो पॉइंट्स पर लिखा है, either yes or no, ये नो को बोलता है लीड, यस को बोलता है लीड, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर को बोलता है लीड। अभी ये नो का ऊपर है इनका आगे का प्रोसेसिंग, या यस का ऊपर है इसका आगे का प्रोसेसिंग, इसलिए हम उसको बोलता है लीड। समझ में आया की क्या है फ्रेंड्स? यू गॉट इट क्लियरली? व्हाट इज ए की, व्हाट इज ए कपलेट? कपलेट बोलेगा तो पेयरिंग कैरेक्टर। अभी ड्राई स्किन, दैट इज ए कपलेट। ऑपोसिबल थंब, दैट इज ए कपलेट। लेकिन ऑपोसिबल थंब पूछे तो यस और नो, यस है तो एक लीड है, नो है तो भी एक लीड है। समझ में आया ये पॉइंट क्लियरली? ओके, आगे का मैं बात नहीं करने को ऐसा एक्चुअली चाहता नहीं है, फिर भी मैं आपको समझ में आने के लिए मैं खाली पिक्चर दिखा के आगे जाके ये बंद कर देता हूं। ओके, नाउ नाउ जस्ट लुक एट देयर। ये मैं आपको बात नहीं करता, ये कॉम्प्लिकेट आपको नहीं चाहिए। अभी फ्लोरा, व्हाट इज अ फ्लोरा? फ्लोरा बोलेगा तो एक पर्टिकुलर प्लेस में जो प्लांट्स रहता है, सभी प्लांट स्पीशीज, अभी मुंबई में जो प्लांट्स है, संजय गांधी नेशनल पार्क में कौन सा प्लांट्स है, ये सभी प्लांट्स को हम कलेक्टिवली बोलता है फ्लोरा। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? संजय गांधी नेशनल पार्क में जो प्लांट्स है, वट एवर प्लांट्स आर देयर इन संजय गांधी नेशनल पार्क, ऑल द प्लांट स्पीशीज टुगेदर वी से सर्वेश, यू वांट टू से समथिंग? चैट बॉक्स यूज करो ना। ओके, सो ऑल द प्लांट स्पीशीज वो साथ में बोलता है फ्लोरा। फ्लोरा का ऑपोजिट है फोना। फोना क्या है? एनिमल्स। ओके, सो प्लांट्स है तो फ्लोरा बोलता है और एनिमल्स है तो फोना बोलता है। ओके, अभी देखो हिमालय, हिमालय में जो प्लांट्स रहते हैं सबको बोलते हैं फ्लोरा ऑफ हिमालय। सो ऐसा बोलता है। आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको मैं फ्लोरा क्या क्या समझा दिया, दैट इज सफिशिएंट। ओके, ऑल द प्लांट्स बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड फ्लोरा। अभी ये देखिए फ्लोरा, ये प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में सारे बहुत बुक्स आपको मिलेगा। ओके, ये बुक्स आपको बोल सकता है मैनुअल्स। ओके, मतलब रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड किया इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड किया जो बुक्स, अभी इधर देखिए अलग अलग बुक्स है, ये सब कुछ क्या है, एक एक मैनुअल है। आपको टेक्स्ट बुक है, आपका सिलेबस के अनुसार स्टडी करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक दिया है, और टेक्स्ट बुक आपका बायोलॉजी का मैनुअल है। आपको प्रैक्टिकल का क्या प्रैक्टिकल कैसे करना, एक बुक दिया हुआ है, दैट इज द मैनुअल। सो जैसा मैनुअल क्या है, इज अ कोड that contain information for identification of names of species found in an area. Okay, that is called manuals. अभी सिमिलरली मैनुअल्स जैसा दूसरा है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स भी ऐसा ही है, लेकिन इधर एक डिफरेंस यही है, इसका जो इंफॉर्मेशन सब कुछ के बारे में नहीं है, एक टैक्सोन के बारे में, मतलब स्पेशलाइज्ड किया गया है। अभी पूरा इंडिया बोलता है, महाराष्ट्र का बोलता है, अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। पूरा इंडिया बोलेगा तो समथिंग एल्स, पूरा महाराष्ट्र बोलेगा तो समथिंग एल्स, जैसा है इधर एक टैक्सोन के बारे में बोलेगा तो मोनोग्राफ्स, मोनो मीन सिंगल, ठीक है। एंड लास्ट कैटलॉग। कैटलॉग जो क्या है, कैटलॉग आपको मालूम है, आप कोई हॉस्पिटल, सॉरी कोई होटल में जाता है या कोई लाइब्रेरी में जाता है, उधर आप जाके कैटलॉग पूछता है। कैटलॉग में क्या है, सब इंफॉर्मेशन एक अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आपको दिया हुआ है। एवरीथिंग इज गिवन इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। Okay, so when everything is given in a particular order, that we can say catalog. Now look at catalog. What is the catalog? It is an alphabetical list of species. हम लोग प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं, स्पीशीज के बारे में बोल रहे हैं या एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं। सो उनका जो प्लांट्स का या एनिमल्स का जो स्पीशीज का अल्फाबेटिक लिस्ट को बोलता है कैटलॉग। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, अपना चैप्टर 1 इधर खत्म हो जाता है। Now what is the time? Just a second, let me see. Now it is time 11 o'clock. Okay, 2 minutes left. We are going to wind up here. I hope that today's session में जो कुछ points मैंने आपको बताया है, all these things are clear to you. Okay. Okay, I'm going to stop this. Okay, this sharing I'm going to stop.
Okay, so today we have completed chapter 1. Chapter 1. अभी ये रिपीट करने को तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी क्लासरूम में डाला है। आप उधर जाके देखेगा तो अब देखिए, मैं इधर नोट्स डाला है, देख लीजिए, ये नोट्स आपका क्लासरूम में है। ओके, सो दिस इज देयर इन द क्लासरूम। नाउ यू सी टैक्सोनॉमिकल एड्स, botanical garden, biological museum, zoological park, ओके, की फ्लोरा फोना, ये सब क्या है करके ये भी मैंने आपको बताया है। सो सब कुछ क्लास में है, क्लासरूम में है। आप उधर से ये मटेरियल डाउनलोड करो, स्टडी करो। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट यू प्लीज स्टडी दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इधर खत्म हो रहे। सेकंड चैप्टर हमको परसों स्टार्ट करना है। सो परसों सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने को पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम आपको पोल में देगा। ऐसा आज क्वेश्चन पूछा ना पोल में, सो जैसा क्वेश्चंस में डाल देंगे, सो उधर का आंसर आपको तुरंत देना पड़ेगा। ओके, सो आपको जो गूगल फॉर्म में नहीं डालूंगा अभी, गूगल फॉर्म एक चैप्टर मतलब पूरा एक 25 मार्क का कुछ करने का चांस होगा तभी डाल दूंगा। अभी 2-3, अभी इसमें से ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। सो वो हिसाब से मैं आपको पोल में डाल दूंगा, पोल में देगा। सो यू हैव टू आंसर फॉर दैट। I hope that you are understanding what I said. Everything is clear. Chapter 1 खत्म हो गया या नहीं according to you? Chapter 1 is over. आप please a note download करो, यही study करो. Please read it. At the same time, please read your textbook. आपका textbook read भी कर लीजिए. Okay? मैं आज अभी इधर wind up करता हूँ. अभी हम लोग मिलेंगे परसों morning. Okay? I hope that everybody enjoying it. Everybody enjoying the class? यू कैन राइट इवन चैट बॉक्स में यस नो लिखने का जरूरत नहीं है, उधर स्पेशलाइज्ड बटन दिया हुआ है। आप यस उधर बटन प्रेस करेगा तो आपको आंसर दे सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स का उधर जाएगा तो आपको बटन मिलेगा, यस का, नो का, आपका जो कुछ क्या करना है, रिस्पॉन्स डालना है, आपको बटन मिल जाएगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंजॉय, एंड विल मीट आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो। ओके देन, बाय बाय।